کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں مجھے بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کے سامنے پیشانی جھکاؤ گے، اور کس کو تم اپنا معبود اپنا پروردگار مانو گے، مجھے بتاؤ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق الہ واحد۔ حضرات، بہت دیر سے آپ حضرات جمع ہوئے ہیں اور پروگرام سن رہے ہیں، اور الحمدللہ بہت ہی عمدہ اور خوبصورت پروگرام چل رہا ہے، اور یہ بالکل آخری مرحلہ ہے، اب دعا کرنی ہے آپ کو۔ اب کوئی بہت زیادہ گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے، دعا ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے صرف ایک بات ہم آپ سے عرض کریں گے، کیونکہ ابھی آپ کے سامنے بہت قیمتی باتیں آئی ہیں، بہت سے قیمتی اشعار بھی پڑھے ہیں۔ مولانا ریاض صاحب قاسمی کا بہت ہی عمدہ بیان میں سن رہا تھا کمرے سے، طبیعت خوش ہو رہی تھی، کیونکہ یہ اپنا ہی لگایا ہوا پودا تھا جو ابھی آپ کے سامنے پھل پھول برسا رہا تھا، اس لیے طبیعت میں بے انتہا خوشی تھی۔ عزیزم توصیف صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی اشعار سنے، بہت ہی عمدہ اور اچھا اشعار، اور استاد الشعراء کا تو کہنا ہی کیا، جن کی شاعری کا چرچا پورے ملک میں ہے، بلکہ اس سے ملک کے باہر بھی ان کی صدائے بادگشت سنائی دیتی ہے، جو لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کر رہی ہے۔ اور واقعہ یہی ہے کہ اشعار جو ہے آدمی کے دلوں کو مٹھی میں لے لیتے ہیں۔ بعض اشعار تو ایسے ہوتے ہیں، خود علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یا تو ایک مصرے میں پہلو سے نکل جاتا ہے دل، یا تو ایک مصرے میں پہلو سے نکل جاتا ہے دل، شعر کی گرمی سے کیا وہ بھی پگھل جاتا ہے دل۔ یعنی قبر سے قبرستان کے اندر قبر کے مردوں سے خطاب کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا کہ دنیا کے اندر تو یہ ہے کہ ایک سے ایک شعرا اپنے شاعرانہ یعنی ملکہ پیش کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو مٹھی میں لیتے ہیں، اور ان کے اشعار اتنے پورا اثر ہوتے ہیں کہ آدمی کا دل پہلو میں اچھلنے لگتا ہے۔ لیکن اے قبرستان کے سونے والے، قبرستان اس شہر خاموشہ کے آباد کرنے والے، قبر میں مدفون لوگوں، تمہارے یہاں کیا مشغلہ ہے؟ کہ کیا وہاں کھیتی بھی ہے، تحقہ بھی ہے، خرمن بھی ہے؟ کیا وہاں کھیتی بھی ہے، تحقہ بھی ہے، خرمن بھی ہے، قافلے والے بھی ہیں، اندیشہ رہزن بھی ہے؟ تن کے چنتے ہیں وہاں بھی عاشقاں کے واسطے، تن کے چنتے ہیں وہاں بھی عاشقاں کے واسطے، خشت و گل کی فکر ہوتی کیا مکاں کے واسطے۔ تو یہ جو اشعار ہیں یہ آج سے نہیں بلکہ ابتدائی سے ایام جاہلیت میں تو انہی اشعار کے ذریعے سوئی ہوئی قوم کو جگایا جاتا تھا اور سمندروں کے اندر آگ لگایا جاتا تھا۔ بہت قیمتی چیز ہے، اور جس سے آپ محظوظ ہوئے اور گھنٹوں محظوظ ہوئے، ہم بھی محظوظ ہوئے، اور دلوں کے اندر گرمی پیدا ہوئی، حرارت پیدا ہوئی، سویا ہوا دل جاگا۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ بڑی قیمتی دولت ہے، بڑی عجیب چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شعراء کو جو شاعرانہ کلام آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور آپ کے دلوں کو گرمایا ہے، خفتہ دل کو بیدار کیا ہے۔ تو اب ہم مزید کوئی گفتگو آپ سے کرنا نہیں چاہتے ہیں، بہت ساری قیمتی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہے، صرف اور صرف ایک بات عرض کر کے ہم دعا کر دیں گے، اس لیے اس بات کو آپ غور سے سن لیں چند منٹ میں۔ بات وہ یہ عرض کرنی ہے کہ چونکہ یہ عقیقے کی نسبت سے یہ پروگرام ہے، اللہ نے جو ہے عقیقہ کرنے والے کے گھر میں جو ہے ایک بچہ عطا کیا ہے، اولاد ملی ہے، جو اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے۔ روئے زمین کی نعمتوں میں، ظاہری نعمتوں میں اللہ نے دو طرح کی نعمتیں انسان کو عطا کی ہے، ظاہری نعمت، باطنی نعمت۔ تو یہ ظاہری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے۔
वासबगा नेमहु ज़ाहिरन व बातिना, कि लोगों हमने तुमको ज़ाहिरी नेमत भी दी है और बातिनी नेमत भी दी है। एक नेमत वो है जिसे तुम आंखों से देखते हो, और एक नेमत वो है जो छुपी हुई नेमत है, लेकिन जो दिखाई देने वाली नेमतें हैं उनमें से अजीम तर नेमत औलाद की नेमत है। तो औलाद की इस अजीम नेमत की हिफाजत करनी चाहिए, और उसका तरीका क्या है, पैगंबराना तरीका क्या है। इब्तदा से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक का तरीका, पैगंबराना रविश और पैगंबराना तरीका और उनका नमूना हमारे सामने क्या है, वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की इस वसीयत और नसीहत से पता चलता है कि जब वो इंतकाल कर रहे थे, मौत की घड़ी सर पर खड़ी थी, सांस का डोरा टूट रहा था, उस वक्त तो उन्होंने अपने तमाम औलाद को इकट्ठा किया, जमा किया, और दुनिया से जाते जाते एक नसीहत कर गए। वही नसीहत मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। कुरान ने बड़े प्यारे अंदाज में उनकी नसीहत की, उस पैगंबर की बात को, उसकी आखिरी दर्द को अल्लाह ने अपने किताब मुबीन में महफूज किया है। कहा कि अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत, कि लोगों तुम उस वक्त मौजूद थे जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की का इंतकाल का वक्त है, आखिरी वक्त है। उन्होंने अपने सारी औलाद को, सारे बच्चों को, नाती पोतों को, बेटों को जमा किया जो 72 की तादाद में थे, और उसने एक नसीहत की, कहा कि मा ताबुदुना मिन बादी, मेरे बच्चों मुझे बताओ, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, किसके सामने पेशानी झुकाओगे, और किसको तुम अपना माबूद, अपना परवरदिगार मानोगे, मुझे बताओ। तमाम बच्चों ने कहा कि नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका, कि अब्बा जान, दादा जान, नाना जान, ये सारे के सारे नाती पोते बेटे मौजूद हैं, सबने कहा कि आप बेफिक्र रहें, आप मुतमिन रहें, आप खुशी खुशी अपने परवरदिगार से मिलें। आपके गुजरने के बाद, आपके दुनिया छोड़ के जाने के बाद, आप ही की तालीम पर, आप ही के मजहब पर, आप ही के दीन और धर्म पर और आप ही की रविश पर आपकी औलाद चलेगी, हम चलेंगे। हम उससे फिरने वाले नहीं हैं, हम शिर्क और बुत परस्ती करने वाले नहीं हैं। नाबुदु इलाह का इलाह वाहिद, एक ही खुदा की इबादत करेंगे। ये पैगंबराना फिक्र है। एक पैगंबर की फिक्र देखिए, दुनिया से जा रहे हैं लेकिन औलाद के बारे में ये फिक्र है उनके दिल में। और एक बात, यही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात और उनके जिंदा होने की खबर 40 साल के बाद मिलती है, जिनके जुदाई में रोते रोते उनकी आंखें चली गई। 40 साल बिछड़ने के बाद एक लाडला बेटा, एक प्यारा बेटा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाला और बाप से दूर कर दिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की फिराक में 40 साल तक रोते रहे, यहाँ तक कि उनकी आंख की बीनाई चली गई। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि आपका गुमशुदा बेटा मिस्र का बादशाह बना हुआ है, जिसके जुदाई में रोते रोते आपकी आंखें चली गई, आपके बाल सफेद हो गए, आपके जिस्म के झुर्रियां पड़ गई, वो बेटा मिस्र का बादशाह बना हुआ है। मेरे भाइयों और दोस्तों, खुशी का मकाम था कि एक देहात का रहने वाला, एक मामूली घर का बेटा रुए जमीन का सबसे मतमतिन मुल्क मिस्र का ज़माम इख्तियार जिनके हाथ में हो और उनके कब्जे में हो, वहाँ का बादशाह बना हुआ हो, ये खबर सुनकर बाप को उछल जाना चाहिए, खुशी से बेखुद हो जाना चाहिए। लेकिन सुनिए, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ये सुनकर कि मेरा बेटा मिस्र का बादशाह बना हुआ है, वो खुश नहीं होते हैं, उसके चेहरे पे बदल जाते हैं, उसका रंग बदल जाता है, वो बेचैन हो जाते हैं, वो बेकरार हो जाते हैं, वो घबरा जाते हैं और पूछते हैं कि मेरा बेटा यूसुफ गुमशुदा मिस्र का बादशाह बना हुआ है। मैं ये नहीं पूछना चाहता, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा बेटा यूसुफ जो 40 साल के बाद आज पता चला है कि वो मिस्र में है, बादशाह बना है या क्या है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। मुझे ये बताओ कि मेरा बेटा इस्लाम पर है या इस्लाम से हटा हुआ है, क्योंकि मिस्र के अंदर बुत परस्ती का दौर दौरा है, वहाँ सारे के सारे बुत के पुजारी हैं, गैरुल्लाह के पुजारी हैं, सारे के सारे मुशरिक हैं। कहीं मेरा बेटा यूसुफ
उस माहौल में जहाँ बुतों की परस्तिश हो रही हो, कहीं उसने खुदाई वाहिद को छोड़ करके, अपने बाप दादा के मजहब को छोड़ करके, उसके दीन और धर्म को छोड़ करके कहीं उसने बुत परस्ती को इख्तियार नहीं कर ली। उनको ये फिक्र है, ये खुशी नहीं कि मिस्र का बादशाह बना है, ये पैगंबराना फिक्र है। और यही फिक्र हमें मिली है, यही फिक्र हमें हमारे अंदर होनी चाहिए, पैगंबरों का फिक्र, अपने औलाद की फिक्र कि हमारे बाप हमारी औलाद क्या होगी। आज इर्तिदाद का फितना फैला हुआ है पूरे मुल्क में, हजारों की तादाद में हमारे बच्चे हमारी बच्चियां अपना दीन और धर्म छोड़ करके गैरों के हल्के में जा रहे हैं, गैर मुस्लिम हो रहे हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, हमें इसकी फिक्र करनी है, अपनी औलाद की तरबियत करना है, उन्हें पढ़ाना है, उन्हें लिखाना है, उन्हें कुरान की तालीम देनी है, उन्हें मदरसों में भेजना है, उन्हें उलमा की सोहबत में डालना है, मकातिब में डालना है, उसके दिल में कुरान की अकीदत, रसूलुल्लाह की मोहब्बत, खुदा की वहदानियत का नक्श दिलों के अंदर कायम करना है, ताकि हमारे बाद हमारी औलाद हमारी हाथों से न निकले, वो दीन इस्लाम को छोड़ करके गैर का मजहब इख्तियार न करे। हमें इसकी फिक्र करनी है। इसीलिए इमामुल अंबिया जनाब सरवर कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपका आखिरी वक्त है, आप दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन आपकी भी आखिरी नसीहत क्या थी? अस्सलात अस्सलात व मा मलकत ऐमानुकुम, के लोगों मैं दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन नमाज की फिक्र करना, अल्लाह को भूलना नहीं, अल्लाह की इबादत करना, ये है रसूल अरबी जनाब सरवर कौनैन अलैहिस्सलाम की आखिरी नसीहत, और यह है पैगंबरों की तालीम, और यह है पैगंबराना फिक्र। इसलिए खुशी तो जरूर है कि अल्लाह ने औलाद अता की है, लेकिन साथ साथ गम भी है, कि कहीं हम अपने औलाद की सही तरबियत न कर पाने की बिना पर, जैसे आज हमारे बच्चे हमारे हाथों से निकलकर गैरों की गोद में खेल रहे हैं, ये भी तो डर है। इसलिए अल्लामा इकबाल कहते हैं कि हम भी तो खुश हैं जवानों की तरक्की से, मगर हम भी तो खुश हैं जवानों की तरक्की से, मगर लबे खंदा से निकल आती है फरियाद भी साथ। और हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। और घर में परवेज के शीरी तो हवी जलवनुमा लेके आई है, मगर तीशे फरहाद भी साथ। इसलिए मेरे भाइयों, इस बात की फिक्र करें और कोशिश करें कि हम अपने औलाद की सही तरबियत करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उसे किसी काबिल बनाएंगे, ताकि वो हमारे लिए तौशे आखिरत बने। इन्हीं चंद बातों पर हम अपनी बात को खत्म करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें और पूरी उम्मत मुस्लिमा को सही तरीके से दीन इस्लाम पर, कुरान और हदीस पर खुद भी चलने की तौफीक अता फरमाए, अपनी आला औलाद को, अपनी नस्लों को भी इसी डगर पर, इसी राह पर डालने और कायम रखने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।